Today we will discuss about the preparation of alkyne, class 11 chemistry, chapter hydrocarbon. There are so many methods for the preparation of alkyne. Number 1, by the dehydrohalogenation of vinyl dihalide. Number 2, by dehalogenation reaction. Number 3, by Kolbe's electrolytic method. Kolbe's electrolytic method. स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसमें क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शन में आएंगे और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ पे आपको नीड हो उस पॉइंट को आपको नोट करें। तो जैसे कि आपका फर्स्ट मेथड है बाय द dehydrohalogenation ऑफ विकनल डाइहैलाइड। बाय विकनल डाइहैलाइड। As you know, example of vinyl dihalide, that's mean halogen is attached to two adjacent carbon. Suppose this is CH3, single bond CH, Cl, single bond CH2, Cl. This is the example of vinyl dihalide. Means two chlorine atoms are attached by adjacent carbon. If we will treat this with KOH, two molecule of KOH, alcoholic, elimination reaction will take place. Chlorine from here and hydrogen from here, then chlorine from here and hydrogen from here will be removed. So you will get CH3 single bond C triple bond CH plus 2 KCl and 2H2 will be formed. This will be called beta elimination reaction. So another example I am writing here. CH3 single bond CH Br, single bond CH Br, single bond CH3. You can take NaOH also. Alcoholic means solution in alcohol. Then heat. So Br from here and hydrogen from here, and Br from here, hydrogen from here. This will be beta elimination. So you will get CH3 single bond C triple bond C single bond CH3 plus 2 NaBr plus 2H2O. Now you have to solve one question for this. Suppose you are taking this one.
This is Br and this is Br, and we attached here 2 KOH alcoholic. On heating, what you will get, write in the comment section. Now see the another method, number 2. This is also dehydrohalogenation method, but here you can use sodamide. By using sodamide, हम जैसे KOH का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोडामाइड का यूज़ करके भी कर सकते हैं. सोडामाइड फार्मूला है NaNH2. इसमें भी हमें विकनल लेना है. जैसे ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें आपके एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन जुड़े हुए हों. सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, Br सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaNH2. So you will get Br will be removed from here, Br will be removed from here, and 2H, that means 1H from this carbon and 1H from this carbon. 2 NaBr will form if we will take 2 molecules here, 2 NaBr and 2 NH3. So product will be CH3 single bond CH2 single bond C triple bond C single bond CH3 plus 2 NaBr plus 2 NH3. This is called sodamide. This is better reaction than KOH, and product is pent 2-ine. प्रोडक्ट का नेम ज़रूरी है. IUPAC नेम भी इससे आपके रिवाइज होते रहेंगे. अब हम एक और रिएक्शन बताते हैं जिसमें हम टेट्राहैलाइड का यूज़ करेंगे, और रिएक्शन का नाम है by the dehalogenation of tetrahalide. टेट्रा मीन्स 4, जिसमें 4 हैलोजन लगे हुए हों. अगर हम किसी भी टेट्राहैलाइड को जिंक के साथ हीट कर दें, सपोज कीजिए हमने दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C Br सिंगल बॉन्ड C Br NH, और हम इस 2 एटम जिंक के साथ हीट कर देते हैं, तो ये जितने भी Br लगे हुए हैं 1 2 3 4, ये सारे Br हट जाएंगे और जिंक के साथ ZnBr2 बना देंगे. तो 2ZnBr2 बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड. अब यहाँ पे CH3 बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. अब देखिए स्टूडेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि क्लास 12th में भी यूटिलाइज किया जाता है. अगर आपके पास एक अल्काइन है, उससे आप कोई दूसरा अल्काइन बनाना चाहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है. फ्रॉम वन अल्काइन टू अनदर अल्काइन, फ्रॉम वन अल्काइन टू another alkyne.
एक अल्काइन है आपके पास, आप कोई दूसरा अल्काइन बनाना चाहते हैं, उसमें कार्बन भी इंक्रीज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको दिया एथाइन, दिस इज एथाइन, एथाइन टू ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन, ये बनाना चाहते हैं। तो हमें कैसे करना बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पहले हमें एथाइन को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करानी है। ये एसिडिक नेचर का होता है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है इस वजह से, और यहाँ से एक H रिमूव कर जाता है और बन जाता है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें, 2 सोडियम ले लें, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। उसका नेम होता है सोडियम एसिटाइड। अब जब आप सोडियम एसिटाइड बना लेते हैं, यहाँ पे आपको एथाइन दिया गया था और हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ब्यूटाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करना है कि हम इसकी रिएक्शन हेलो एल्केन यानी CH3CH2 Br से करा दें, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, ये Na और Br रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये ब्यूट 1 आइन बन गया और प्लस NaBr और रिमूव हो गया। एक एग्जांपल इसका और करते हैं। मीन्स पहले हमको सोडियम से रिएक्शन करा लेनी है, या हम इसको कह सकते हैं कि बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम, बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटाइड Na, फार्मूला है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। हमें यहाँ पे कोई हेलो एल्केन लेना है, हमने लिया CH3I और इसकी रिएक्शन हमने सोडियम एसिटाइड से करा दी। हीट करने पे ये हमें बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको क्वेश्चन है, how you will convert ethane to but 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, ये कन्वर्ट करना है आपको, इसको कन्वर्जन को करना है। अब लास्ट मेथड है आपका बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें हम कोई पोटेशियम सॉल्ट का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। आपको बता दें कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड क्या होते हैं। ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसमें ये आपके 2 बॉन्ड्स ओपन है। यहाँ पे H है, यहाँ पे COOH है, एक एसिड ग्रुप, यहाँ पे H है और ये COOH है। ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म को हम मैलिक एसिड बोलते हैं, मैलिक एसिड। और अगर हम ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया भी था, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, इसको हम फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोले जाते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। ये मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड कॉमन नेम बोले जाते हैं, जबकि इनके
IUPAC नेम ट्रांसफॉर्म है ये। IUPAC नेम ब्यूटेन ब्यूटूइन 1,4-डाइओइक एसिड, सिस और ट्रांस लगा के लिखने पड़ेंगे। अगर हम इन एसिड में से हम पोटेशियम के सॉल्ट में कन्वर्ट कर लें तो हम इसको यूँ लिखते हैं CHHCOOK। ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड बोला जाएगा। और इसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो CH डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव, यह एनायन बनेगा और साथ में पोटेशियम कैटायन +2K पॉजिटिव। तो ये जो आपका मैलिएट आयन बन रहा है, इसको आप एनोड पे अगर रिएक्शन कराएंगे तो एनोड पे COO CH डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव N नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन, और ये बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और +2CO2। तो अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है और साथ में डिस्क्रिप्शन में कुछ MCQs क्वेश्चन भी आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को करना है। कंप्लीट द रिएक्शन CH3 CH2 Br gives KOH alcoholic, find A, then Br2 CCl4 B, then 2KOH alcoholic, find C। इसमें आप ABC को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। अगली वीडियो के लिए वेट करें। कल हम आपके साथ फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कल नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द एल्काइन। थैंक यू, गुड नाइट।